सब लोग भूल गए. Sad. Right at the moment with us, our very dear friend from the Congress Party, Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार. Namaskar sir, namaskar. How are you? I'm good sir, I'm good. Pradeep ji is also here sir. Namaskar sir. We can't. Yes sir. You can't see us? I think you can't see us, right? Can you see us? I can see you. I can see you. Only your voice is very less. So उसको बढ़ाने के लिए कहिए. Can you please do something about the voice? Why can't Mr. Bharat Soni hear me properly? All right. Bharat Soni साहब, our sound guy says that you have to increase the voice at your end. आपने बड़ी लो रखी हुई है आवाज हमारी. Now, will somebody guide him through as to how he has to increase it? आवाज फुल है. Okay. आवाज full है. Right, sir. We'll go ahead anyway. This is what happens every day, so we are quite used to it. Bharat Soni साहब, can you hear me now, sir? Sir, can you hear me? Yes, थोड़ी आवाज बहुत स्लो आ रही है. मैं सुनने की कोशिश करता हूँ सर. Ji, one second. Can we do something about the voice, please? Gentlemen, can we do something about the voice, please? I don't know why this happens every day. Please don't tell me that there is a problem. You said the guest is connected. I would have thought that you would have looked at all the problems and then connected the guest. And why do I have to say this on air? I don't understand. I really don't understand. Pradeep ji, this is getting to be a bit irritating. Yes. Very frankly speaking. We have the guest. Guest is connected, but there is a Bluetooth problem or there is a volume problem. I don't really know. I mean, what is going on here? Which is strange. In any event, as far as Mr. Rahul Gandhi is concerned, Pradeep ji, Rahul Gandhi says, in every failure there is an opportunity. Yes, you have to be philosophical in life. Accept defeats, accept what comes. Yes, and he The says, भगवत गीता का सार ही है सर. वो कहते हैं, we shall work harder. बिल्कुल. वो कहते हैं हम ज्यादा मेहनत करेंगे. Yes. कुछ भी हो जाए हम हिम्मत नहीं हारेंगे. ठीक है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोगों ने हमें हराया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लेकिन तेलंगाना में हमें जितवाया भी है. लिहाजा जहां तक के कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने ये कहा है कि हम लोग वैसे ही मेहनत करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे थे. But maybe they should perhaps look at their strategy on the ground. Maybe. So Rahul Gandhi ji, lately he's been saying he reads the Puranas, he reads the Bhagavad Gita, he reads the Upanishads, and the greatest जो भगवत गीता से ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो. Probably he's come to that particular stage where he says action alone is that province, not the fruits thereof. So फल की चिंता बिल्कुल नहीं है, बस आपको अपना काम. And that's whatever you do, he tried his best. I mean, there was no stone left unturned where Rahul Gandhi ji was concerned, where Priyanka Gandhi was concerned, Mallikarjun Kharge. They worked as a team. They toiled morning to late evenings, late nights. But maybe the issues that they picked up, rightfully speaking, if they just stuck to their Jan Kalyan Yojana. अब ये कहा जा रहा है, माफ कीजिएगा, sorry, I have to clear my throat, माफ कीजिएगा, कि जो कास्ट सेंसस है, OBC कास्ट सेंसस, ये सेंसस, वो वगैरह, it perhaps backfired because all the other castes, perhaps the upper caste, consolidated their vote and did not vote for them. And even within the OBCs there was competition, there was confusion कि किनकी बात कर रहे हो, क्योंकि याद रखें OBC is not one big chunk of voters. It consists of thousands of castes. प्रदीप जी 1200 से ज्यादा कास्ट हैं OBC. राहुल जी ने खुद बोला कि 84% OBC SC/ST को जोड़ेंगे तो योर 84% ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन. जी. तो इफ 84% ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन, आई मीन ही ट्राइड हिज बेस्ट. OBC के बात किए, जातीय जनगणना मांगे, गरीब कल्याण स्कीम्स वाज अनलीस्ड लाइक नेवर बिफोर. 5 वचन, 6 वचन, 9 वचन, 11 वचन, अलग अलग स्टेट्स में वचन कहना कि ये हमारा गारंटी है. हमने हिमाचल में, कर्नाटका में, वेरियस प्लेस इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वी हैव केप्ट आवर प्रोमिसेस. हमने प्रॉमिस रखा है, वी हैव केप्ट, एंड दिस इज राहुल गांधी प्रॉमिस. जो मोदी गारंटी था, इट वाज राहुल गांधी गारंटी. एंड आई डोंट थिंक nothing anything left where they could have done. उन्होंने सब कुछ किया which they could have.
But there's some breaking news, Pradeep ji. बिल्कुल सर. And for our viewers, a Lashkar terrorist, Lashkar-e-Toiba का एक terrorist, wanted as one of the main conspirators of the Mumbai 26/11 attack, Sajid Mir, Oh God, Sajid Mir gone. has been poisoned by unknown men inside Central Jail, Dera Ghazi Khan. Some of my relatives come from there. Dera Ghazi Khan. Sajid Mir was one of the main accused persons. Well, he is 26/11. He is now the late Sajid Mir. These unknown men, The unknown men of Prime Minister Modi. I'm not sure. Unknown men, that's it. Amazing. But the US government has already filed probably a report saying the way Indian intelligence agencies are working, trying to eliminate people on US soil. You have the Canadian Prime Minister saying how the Indian authorities are eliminating people on Canadian soil. We have learned from the CIA. And Pakistan, there is as good as no government, so nobody can say anything. We've learned from the CIA. So Yes. if indeed it is ours, I'm not No, sure. but if the enemies of India are being hit, so nobody else. Sajid Mir was the enemy to no. I think he was more of 26/11, the perpetrators of 26/11 attack. Well, he is no longer around No, he's not. to perpetrate any more attacks, either from jail or from upstairs. And knocked out from the safe havens of the jail because the this safe is the havens safe of the haven for them. And that too from Dera Ghazi Khan. Baap re baap. Right at the moment with us, I think we've got Hafiz Mr. Bharat Syed Soni guy. and Zakir Rahman luckily remains. These are the only guys remain. Right, and there was somebody else, right? One other guy is there. Bharat Soni साहब. जी राजीव जी, अभी सुनाई दे रहा है? मैं हूं अभी. माशाल्लाह सर, जबरदस्त अभी सुनाई दे रहा है आपको. बहुत सर बढ़िया. तो congratulations for तेलंगाना. थैंक यू सर. तेलंगाना के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सर, थैंक यू सर. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप में और कांग्रेस में महज 1 या 1.5% का फर्क है वोट शेयर में. बिल्कुल सर. सीट्स में ज्यादा फर्क है, लेकिन बिल्कुल 1 या 1.5% का फर्क है. बट मध्य बिल्कुल प्रदेश आई एम सरप्राइज्ड अबाउट सर. मध्य प्रदेश आई एम सरप्राइज्ड अबाउट 8 के 9%. दैट्स अ बिट मच. क्या हुआ सर? कुछ सर, इवन मध्य प्रदेश वी आर सरप्राइज सर कि हम लोगों के लोग जो गए थे वहां पर, और हम लोगों चरण सिंह सप्रा जी भी वहां पर थे, वो सारे लोग बता रहे थे कि जिस प्रकार से हमको वहां पर जो फीडबैक मिल रहा था और लोगों की तरफ से जो हमको रिस्पांस मिल रहा था, वो देखते हुए हमें ऐसा लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और ऐसा बहुत सारा है, और हमारे जो प्रॉमिसेस थे, गारंटीज थे, उसके बावजूद हमको नहीं मिला. इसके ऊपर हम लोग भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, चिंतन शिविर होगी और हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे सर. नो, अभी गांधी गारंटी वर्सेस मोदी गारंटी. ना बीजेपी का कहना है देखो मोदी गारंटी पे लोग ट्रस्ट किए, लोग विश्वास किए. पीपल हैव राहुल गांधी का जो ना, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया. राहुल गांधी जी, आइडिया ऑफ इंडिया, दैट राहुल गांधी जी गारंटी. और लोगों बीजेपी का प्रोपेगेशन यह है कि दैट्स द एंड ऑफ राहुल गांधी गारंटी. मोदी गारंटी स्टेज एंड 2024 हैट्रिक के बाद 2024 खुला हुआ. दैट्स व्हाट नरेंद्र मोदी जी सेड. हाउ डू यू सी दैट एंड ऑफ द गांधी गारंटी? बहुत सोनी साहब. प्रदीप जी देखिए, टू राइट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन और टू राइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और टू राइट ऑफ राहुल गांधी जी is something, very premature talks. See, we are there into the field. Congress is an ideology, Congress is a movement. तो हम लोग है इसमें. हाँ जरूर, हम लोगों ने जो हम लोग वादे लेके चले थे, जो गारंटीज लेके हम लोग चले, उसमें हम लोग खरे नहीं उतरे और लोगों ने हमें नहीं पसंद किया. और सर लोगों ने क्या पसंद किया कि हमें 1000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा तो चलेगा, हमें नौकरी नहीं रहेगी तो चलेगा, हमें बिजली का कनेक्शन छूट नहीं रहेगा तो चलेगा, परमानेंट नौकरी नहीं और अग्निवीर रहेगा तो चलेगा, ओबीसी सुरक्षा नहीं और अत्याचार होगा तो चलेगा, काम की बात करने वाला नेता नहीं जुमलेबाज होगा तो चलेगा. ये सारी बातें हैं. मैं आज इतना हार्श नहीं बोलना चाहता था प्रदीप जी, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है डिफीट, और हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी गलतियां हैं, हमारी जो कुछ भी गलतियां रहेगी
जो कुछ भी खामियाजा हमने भुगता है हमारी गलतियों के कारण, उसी के कारण हमको लोगों ने हमारे पे विश्वास नहीं रखा रहेगा। तो हम लोग उसके ऊपर जरूर काम करेंगे सर। और जहां जहां कमियां है हमारे में, जहां जहां कमियां रह गई है उसके ऊपर काम करके हम लोग, अभी 6 दिसंबर को तो इंडिया अलायंस की मीटिंग है, उसमें भी हम लोग आगे की रणनीति है, क्योंकि अभी कोई इसके बीच में विधानसभा का, असेंबली का चुनाव नहीं है, अभी सीधे है वो बड़ा चुनाव है जो कि लोकसभा का चुनाव है जी। तो वो देखते हुए हम लोग इसके ऊपर अवश्य काम करेंगे। और आपने जो कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया, तो हमारी आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? हमारी आइडिया ऑफ इंडिया है कि सबको साथ में लेके चलिए, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये सभी चीजें लेके साथ में चलिए। तो उसमें कहीं पर आज की भाजपा गवर्नमेंट की चूक हो रही है, उसके बावजूद भी लोग उसको दरकिनार करके उनको वोट देने रहे, ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन भरत सोनी साहब, एक चीज, छोटी सी चीज जो आपने थोड़ा सा मेंशन किया उसका, अजीब व गरीब बात है। मतलब लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, 1200 रुपए महीने का महिलाओं को नहीं चाहिए, मुफ्त में महिलाओं को का सफ़र करना, ट्रैवल फ्री फॉर विमेन, वो भी नहीं चाहिए, फ्री में घर, फ्री में ज़मीन, साथ में 5 लाख रुपए और घर बनाने के लिए, वो भी नहीं चाहिए, 25 लाख रुपए की जो मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम थी जो लागू हो गई थी, जिसको 50 लाख रुपए कर दिया, वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए। ये जरा समझाएंगे सर, क्या मतलब हुआ इसका? सर ये हमें भी बड़ा, राजीव जी हम लोग खुद हैरान हैं, मैं खुद हैरान हूं कल से कि लोगों को क्या चाहिए। अगर जब इतने सारी स्कीम्स हम लोगों ने ऑफर की और हम लोग उसके ऊपर खरे उतरे हैं। सर देखिए, राहुल जी हमारे जो नेता है वो ऐसे नेता है जितना वो दे सकते हैं उतना ही बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलते हैं। सर देखिए, कर्नाटका में, हिमाचल में हम लोगों ने जो, राहुल जी ने जो कहा, जो गारंटी दी, वो हमने की है। और यहाँ पर सर देखिए, आज सब जन क्या बोलते हैं कि मोदी जी फैक्टर है, मोदी जी के करिश्मा है, मोदी जी के ऊपर ये, तो उन्होंने तो आज तक 2 करोड़ नौकरियां जो सालाना देने वो दी नहीं है। उन्होंने जो 15 लाख रुपए सबको देने वाले वो दिया नहीं है। फार्मर्स की डबलिंग ऑफ इनकम होने वाली थी 2022 में, वो हुआ नहीं है। फिर भी लोग अगर उनको चुनते हैं तो ये हमारे लोकशाही के लिए, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन आज मैं ये नहीं कहना चाहता था, क्योंकि आज बहुत 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 अर्ली स्टेज में हमें इंट्रोस्पेक्शन करने दीजिए, हमें हमारी भी भरत सोनी साहब घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, घमंडिया गठबंधन। तो ये बार बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी हर प्लेटफॉर्म पे बोलता था। They used to tell, do you think your allies are creating more problem for you than Congress itself? Because this was said by Junior Stalin in Tamil Nadu and that has caught fire. और you know that ये जो है spiritual, दोनों स्टेट आप देखोगे, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, the people there are very spiritually touched, inclined, very very spiritually inclined. Has Narendra Modi ji and Amit Shah caught the heart of the people, the pulse of the people by saying that Sanatan Dharm के खिलाफ है घमंडिया गठबंधन? How do you see that big factor? प्रदीप जी देखिए, हम लोग इंडिया अलायंस के तहत हमने जो सनातन धर्म के विषय में उदयनिधि स्टालिन जी ने जो कहा था, उसके ऊपर हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया था, हमने उसके ऊपर कोई किया सर, किया मिक्स्ड नो किया सर। भरत सोनी साहब माफ कीजिएगा, सॉरी आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता हूं। कार्तिक चिदम्बरम साहब, सर कार्तिक चिदम्बरम, यही एक चैनल है जिसमें आप पूरी आजादी देते हैं, तो आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं सर, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा सर। सर कार्तिक चिदम्बरम साहब ने और खड़गे साहब जूनियर ने, जो आपके केपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने टोटली सपोर्ट किया सर। दे सपोर्टेड स्टालिन जूनियर इन पब्लिक। कार्तिक चिदम्बरम सेड हिंदुत्व is akin to fascism in the south. Hindutva means is totally different from Hinduism. This Hindutva is that of the BJP. सर ये स्टेटमेंट हर जगह भुनाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये देखिए हिंदुओं के खिलाफ हैं।
सर बताएं। राजीव जी देखिए, उसे ट्विस्ट किया गया था। वो या- सनातन धर्म के विषय में उदयनिधि स्टैलिन जी ने क्या कहा था, मैं उसको कोट करता हूं सर, सनातन धर्म वाज अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड शुड बी इरेडिकेटेड। तो सर उसके ऊपर आज भी Like कोई नहीं COVID. बोलता सर, सनातन धर्म बिलीव्स इनटू द इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, वो कास्ट में बिलीव करता है सर, उसके ऊपर वो बोले थे सर। उन्होंने ये नहीं किया कि हम लोग वो धर्म के खिलाफ है, हम But it लोग has वो cost you. हिंदुइज्म के खिलाफ, ये It has ऐसा कभी cost नहीं you. बोला है सर। सर इट हैज कॉस्ट यू, आपको भारी कीमत चुकानी पड़ी है उसकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन ही अच्छे हैं, ऐसे दोस्तों को रखते क्यों अपने साथ सर, ये बताओ। लेकिन सर देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज बताता हूं सर, आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैं आपसे आपके साथ लिबर्टी ले सकता हूं, ठीक है सर, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आपने जीती हुई बाजी हारी है, यू हैव स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, इट वाज देयर सर, यू हैड वन, you decided to lose. Why did you decide to lose? That's what I want to know. You had won. राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो एटलीस्ट सवाल ही नहीं था कि कांग्रेस हार जाए। भरत सोनी साहब इसके बारे में जरा मुझे समझाइए, हाउ डिड यू मैनेज टू लूज, जस्ट लाइक हाउ डिड इंडिया मैनेज टू लूज द वर्ल्ड कप फाइनल। सर देखिए सर, जीती हुई बाजी को हारना ये बाजीगर कहते हैं सर। हाय तो हाय। उस प्रकार से वो एक फिल्मी डायलॉग है। लेकिन सर देखिए, राजस्थान में हमारे कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है। आज हम पर चाहे मीडिया के लोग या अपोजिशन के लोग या हमको कुछ भी कहकर हम पे हंसे, वो उनका हंसना वाजिब है, क्योंकि गलतियां हमसे हुई है सर, हमसे जहां पर जो लोगों को समझने में हमसे गलतियां हुई है। लेकिन सर इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत जो बोलना चाहते थे, वो आज साउथ में से बीजेपी मुक्त साउथ हो गया सर जी, हो गया। आज साउथ में देखिए तो सिर्फ 7 सीटें आई है उनकी। वो भले आप बोले कि 1 सीट से 7 यानी 7% राइज है, ये आपके तसल्ली के लिए ठीक है, लेकिन साउथ से आज बीजेपी का सफाया हो गया, वो कहीं पर भी नहीं है सर। ये कोई देख नहीं रहा है सर, और हम लोग काम करेंगे सर। हमारा जो नॉर्थ बेल्ट में हम लोग कमजोर है, उसके ऊपर हम लोग सारे लोग काम करेंगे, क्योंकि सर क्या है, इंडिया अलायंस को समय नहीं मिला ये अलायंस करने के लिए, विधानसभा के लिए, और हम लोग इसीलिए मगर यहाँ पर संजय राउत का कहना है कि संजय राउत योर एलाय, संजय राउत का कहना है कि आप इंडी अलायंस असेंबली में भी जुट के काम करते थे, सबको इन्वॉल्व करते थे, तो यू वुड हैव वन। दैट्स व्हाट संजय राउत इज सेइंग। संजय राउत इज वन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर महाराष्ट्र एमवी अलायंस। बोले गलती वहीं पर हो गया, कांग्रेस ने सबको साथ में नहीं लिया असेंबली इलेक्शंस में। डू यू एक्सेप्ट दैट सोनी साहब? बिल्कुल सर, संजय राउत जी जो कह रहे हैं सर, देखिए सर क्या है सर, इंडिया अलायंस के अंदर कैसा है कि एवरी एलाई इज फ्री टू स्पीक, अनलाइक एनडीए जहां पर कि सिर्फ मोदी साहब की चलती है, दूसरे कोई बोल नहीं पाते वहां पर, है ना। तो सर हमारे इंडिया अलायंस में एवरीबॉडी इज फ्री टू से, तो संजय राउत जी ने जो कहा है उसके ऊपर भी विचार होगा। और संजय राउत जी एंड उद्धव जी की शिवसेना, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है महाराष्ट्र के अंदर, और हम लोग आज भी मानते हैं कि महाविकास आघाड़ी के तहत हमारे नेता, महाविकास आघाड़ी के नेता उद्धव जी ठाकरे ही है। तो सर उसके तहत संजय राउत जी ने जो कहा है वो हमने सुना है, हमारे लीडरशिप ने भी सुना है, और उसके ऊपर जरूर विचार विमर्श होगा। सोनी साहब, और उसके the other biggest factor, सोनी साहब, the other biggest factor was बार राम मंदिर का मुहूर्त 22 जनवरी 2024 12:22 का मुहूर्त हर मंच पर अमित शाह बोलते गए, हर मंच, एवरी मंच अमित शाह बोलते गए, और यह भी बोलता कि 70 साल से कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, ईशू टेल दैट, और 550 साल के बाद मोदी जी पुनर्जीवित कर रहे हैं राम मंदिर को। एंड मोदी जी भी बार बार बोले कि हमने अयोध्या में काम शुरू कर दिया है, हमने काशी विश्वनाथ ठीक कर दिया, उज्जैन, महाकाल, केदारनाथ, राम जन्मभूमि और अभी कृष्ण जन्मस्थान भी ठीक कर देंगे। तो डू यू थिंक दैट दीज थिंग्स हैड अ वेरी मेजर इफेक्ट इन बोथ दीज प्लेसेस, राजस्थान एज वेल एज
Madhya Pradesh. And you know, Rahul Gandhi could not talk on these things where Mandir was concerned. He restrained himself from talking. Do you think this is one Hindutva was a big factor, Soni साहब? प्रदीप जी देखिए, सी राम मंदिर का राम मंदिर एंड प्रभु रामचंद्र जी, ये एवरी एज ए सी इन कांग्रेस आल्सो वी आर हिंदूज, नो सर, सो फॉर एवरीबडी इट इज इम्पोर्टेंट, और हम लोग के लिए, सबके लिए वो एक बहुत ही धार्मिक चीज है। और सर इसका ताला भी तो राजीव जी ने ही अरुण नेहरू जी के थ्रू खुलवाया था सर, वो लोग भूलते हैं। लेकिन सर अगर आपने इस चीज का जिक्र नहीं किया, probably you want the Muslim vote with you. सर उसी पे आ रहा हूँ प्रदीप जी, प्रदीप जी उसी पे आ रहा हूँ कि आप रिलीजियस मुद्दा का और टेम्पल का मुद्दा उठा के आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में ला रहे हैं, उसके बदले आप आपके 9 साल के डेवलपमेंट की बात करिए ना सर। आपने जो वादे किए वो पूरे किए हैं क्या? आपने जो चीज आपने गारंटी दी थी 9 साल पहले 2014 में, उसके ऊपर आप बात करिए। आपको रिलीजियस मुद्दा लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सर। रिलीजियसली भावुक करके, इमोशनली रिलीजियसली ब्लैकमेल करके आपको लोगों को करना, वो चुनाव में आप जो वोट मांगते हैं, तो कहां की राजनीति हुई सर? ये तो जीतने वाली हुई सर, जीतने वाली, Exactly. जीतने वाली राजनीति सर, जीतने वाली राजनीति हुई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है सर, एक और चीज है, छोटी सी बात है। First, let's look at the technical aspect. The next question is somewhat embarrassing. I don't know whether you would want to react to it. Chhattisgarh में BJP has got 46.3% votes. Yes, Congress has got 42.2%. कांग्रेस के 42.2% हैं, तो मतलब 4% का फर्क है सर, 4% छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में बीजेपी को 41.7% है और कांग्रेस को 39.5% है, तो फर्क सिर्फ 1% का सर, ओनली 1%। मध्य प्रदेश में बहुत फर्क है सर, 48.6% वर्सेस 40.4%, बट दैट इज ऑल्सो, इट इज नॉट एज इफ इट्स ह्यूज। ऐसा नहीं है कि 10-20% है, इट्स जस्ट 8%। मेरा ये कहना है सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, राजीव जी देखिए, if you can work on this, no, hang on a minute, if you can work on this, you are within striking distance sir, if you can really work on this in the Lok Sabha elections, इतनी क्लोज फाइट हुई है, जैसे राजस्थान में 1% के फर्क में इतनी ज्यादा सीटों का फर्क पड़ गया, वहां पर अगर आप ये वर्कआउट कर लें कि कहां पर आप हारे हैं, अगर कहां पर आपने अकल से काम नहीं लिया, कहां पर आपको अशोक गहलोत जी को टोटली ट्रस्ट करना चाहिए था, वहां पर आपने दिनेश अरोड़ा जी को ट्रस्ट कर दिया और उनके डिजाइन बॉक्स को बोल दिया कि भाई तुम कैंपेन करो वगैरह वगैरह वगैरह। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, जेपी अग्रवाल साहब को आपने भेजा मध्य प्रदेश में इंचार्ज बना के, और कमलनाथ जी ने जेपी अग्रवाल साहब को रवाना कर दिया वहां पे, उनको कहा कि वापस चांदनी चौक जाओ, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे रहने की। सर आप मुझे बताइए, जैसे तेलंगाना में DK Shiv Kumar साहब and Revant Reddy साहब did not allow any interference from those 4 musketeers in Delhi, जो आपके 4 मस्केटियर है ना दिल्ली में, अगर आप बोलो तो मैं नाम भी बोल देता हूं। इसलिए आप जीते हैं तेलंगाना में और इसलिए आप हारे हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। अब बताइए सर, अब आप बोलिए। राजीव जी देखिए, आपने जो मध्य प्रदेश की बात कही ना, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर ना 9% से इंक्रीज हुआ, कांग्रेस का वोट शेयर 0.5% ही डाउन रहा। लेकिन सर उसके बावजूद बीजेपी का गेन कहां से आया? बीएसपी 3% से और अदर्स का 5.5% से। ये तो हुई फिगर्स की बात सर, और ये ऐसे ही फिगर्स ना दूसरी जगह भी टोटल वोट्स देखेंगे सर, कांग्रेस को मिले हैं 4,90,69,462 वोट्स और बीजेपी को वोट मिले 4,81,00,000, 29,325। तो वोट आप टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कांग्रेस को मिले वो गिनेंगे ये पूरे 4 इलेक्शंस में, तो वो कांग्रेस के ज्यादा है। लेकिन सर वो हमें जीता नहीं उसने सर, योर वोट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड और आपके वोट्स जो हैं वो बिखरे हुए थे, इसलिए हाँ बिखरे हुए। और सर दूसरा, आपने जो ये कहे कि हमारे जो कुछ नेता जाके वहां पर उनको नहीं सुना और उनका कुछ सुनाई नहीं, उनको वापस भेज दिया, ये सारी बातें सर मीडिया में जितनी आई है उसने इंटरनली भी हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को
राहुल जी को, इनको सबको मिली है ये बातें सर, तो उसके ऊपर सारा काम होगा। और सर राजीव जी, आप जिस प्रकार से हमको फीडबैक देते हैं, आपके द्वारा हमको जो फीडबैक मिलता है वो मैं मेरे पार्टी फोरम में भी रेस करता हूं, और Thank you, ये sir. हमारे पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उसमें बोलता हूं कि ये है, आगे सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर है, ऐसे में हमारे लीडरशिप को मीटिंग में बोल देता हूं। तो सर ये सराहों पर आपने जो सजेशन दिया वो बिल्कुल सराहों पर है सर। But I'll और tell you हम लोग something, sir. You must congratulate Mr. Khadge. You must congratulate? Congratulate Mr. Khadge. अभी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे, आपकी जो तेलंगाना की जीत है ना, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पुट हिज फुट डाउन। जब ये आपके 4 मस्केटियर जो थे ना दिल्ली के, वो चाहते थे कि दिनेश अरोड़ा साहब का डिजाइन बॉक्स वहां भी जाए। अगर वहां पहुंच जाता तो बीआरएस फिर जीत के आता और भारतीय जनता पार्टी भी बीआरएस के साथ नई सरकार बनाती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं सर। ऐसा है, आखिर में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कितना करेंगी, बाकी सब लोगों को भी तो काम करना पड़ेगा। आप ये बताइए ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब देना चाहें प्लीज दीजिए। बिल्कुल। और अगर ना देना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हम आत्मचिंतन करेंगे, जैसे प्रदीप जी ने अभी भी पूछा, जो आपने शायद सुना नहीं। एक दर्जी था बेचारा कन्हैया लाल, उसका गला काट दिया राजस्थान में उसको खूब भुनाया बीजेपी ने हर जगह पे, और बात भी ठीक है। 18 महीने तक स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया गया राजस्थान सरकार द्वारा, और उनमें से कई लोग जो थे उनको बेल भी मिल गई। हर जगह पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो प्रो मुस्लिम पार्टी है, एंटी हिंदू पार्टी है। अब आप ये बताइए। और पीएफआई रैलीज, हर मंच पर अमित शाह ये भी बोलता है कि पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया रैलीज को पुलिस बंदोबस्त के साथ, पुलिस स्टेट प्रोटेक्शन के साथ मोर्चा निकालने दिया आपने, एंड यू नो दैट्स स्ट्रक द कॉर्ड ऑफ द पीपल। सर आप ये देखिए, माइनॉरिटी का वोट आपको चाहिए, बिल्कुल ठीक है, चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी वोट को आप एलियनेट कैसे कर सकते हैं सर? भरत सोनी साहब बताइए ना। सर राजीव जी देखिए, ये एक पहली बार भी एक बार पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका था सर। उस टाइम पे भी मैंने जो जवाब दिया वही मैं आज रिपीट करता हूं सर, कि देखिए कन्हैया लाल जी के केस में क्या हुआ है कि सर वो टेक ओवर कर लिया था सेंटर ने, सेंटर ने जो टीम बनाई, एनआईए मगर वो एनआईए ने टेक ओवर, आपने केस फाइल नहीं किया। बीजेपी का करना है कि आप यू फेल टू रजिस्टर अ केस, सो एनआईए इंटरवीन, एनआईए फाइल्ड अ केस। दैट इज द मैसेज दैट द बीजेपी लीडर्स आर गिवन टू द पीपल। राइट और रॉन्ग? सर दैट इज रॉन्ग, बिकॉज सर वी हैड ऑलरेडी अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। प्रदीप जी, वी हैड ऑलरेडी अरेस्टेड दोस कल्प्रिट्स बिफोर हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। उनको रिलीज कराने कौन आए सर? जो आसाम के गवर्नर है वो खुद आए थे उनको रिलीज कराने सर। अगर आप उनको रिलीज कराते रहेंगे और उनको छुड़वाते रहेंगे तो वो बन जाता है ना, हावी बन जाता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा सर। इसलिए हम लोग को बोल रहे बार बार कि सर हमने जो उसके ऊपर एक्शन, हमारे यहां से एक्शन होना मुश्किल था क्योंकि वो ऑलरेडी एनआईए ने केस ले चुके थे सर जी। खैर सर, अभी ये तो बातें पुरानी है सर। हम लोग तो इलेक्शन उसके कारण हार गए और हम लोग नहीं लोगों तक पहुंच पाए वो लेके, वो उसका हम लोग करेंगे उसके ऊपर काम। पर सोनी साहब, यू नो राहुल गांधी जी ने ओबीसी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था। बोले कि ओबीसी जनगणना होना चाहिए, ओबीसी जनगणना होना चाहिए, एंड उन्होंने गिनाया था कि ओबीसी जितने एम्प्लॉयमेंट में है गवर्नमेंट ऑफिसेज में 90 में से कितना, ही डिड एवरीथिंग ही कैन। बट आई थिंक वन थिंग दैट्स पॉइंट इज दैट जेपी नड्डा जो आज बोले, जेपी नड्डा जी बोले कि आप जब मोदी जी को गाली देते हो, आप मोदी जी को अपशब्द बोलते हो, तो you are attacking the OBC community. That is what is that reflecting. That attack on Mr. Modi is an attack on the entire OBC community. तो क्या this was a big means जो बोलते हैं कि you failed a strategy there that आप बार-बार मोदी जी पे अटैक कर रहे थे and it was seen by people and the was that OBC पे अटैक हो रहा है। प्रदीप जी, it was not an attack or a blunder. It was not an attack or a blunder or any of such thing. सर देखिए, हम लोग ओबीसी प्लैंक लेके चले, वो आज भी हम लोग उसके ऊपर कायम हैं।
सर ओबीसी की जनगणना जो कास्ट सेंसस होना चाहिए वो होना चाहिए सर। सर देखिए राहुल जी कुछ भी चीज जो करते हैं ना सर वो इलेक्शन को ध्यान में रखते नहीं करते। सर एक दूसरी मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, फिर से ओबीसी पे आता हूँ। सर देखिए राहुल जी ने क्या बोला कि 50% ऑफ द लेडीज शुड बी चीफ मिनिस्टर। अब देखो ये बात वो इलेक्शन के पहले बोलते, 2-4 दिन पहले बोलते तो वो कितना फर्क पड़ता, लेकिन उनको इलेक्शन के हिसाब से सर राहुल जी इज ए सोशल रिफॉर्मर टाइप के लीडर है, तो वो सोचते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म में कितना फायदा होगा। और मोदी जी क्या सोचते हैं लॉन्ग टर्म में कितना बेवकूफ बनाया जा सकता है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन। सर देखिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो लेके आए, वो आएगा कब, 10 साल के बाद, लेकिन आज से उसकी चर्चा कर रहे। इन्होंने क्या बोला सर राहुल जी ने कि मैं 50% महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता हूं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा सर वो। सर देखिए तो सर वो जो लेके चले सर, क्योंकि इनके पास रीच ज्यादा है, इनके पास सोशल मीडिया के फॉलोअर ज्यादा हैं और इनके पास साधन संपन्न सब कुछ है, तो इनका मैसेज तुरंत डाउन द लाइन चला जाता है। और सर उनका गोदी मीडिया तो है ही है। लेकिन सर जहां तक आपका सवाल है, राहुल गांधी जी का जो मैसेज है पूरे देश में गया है, ये आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप देखिए ना, पूरे 5 इलेक्शन में आपको ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन आपके कैंडिडेट भी ज्यादा थे। तेलंगाना में आपके ज्यादा कैंडिडेट थे, लिहाजा वहां पर आपको वोट ज्यादा मिले, जिसकी वजह से तकरीबन 9 लाख वोट के 9 लाख वोट आपको ज्यादा मिले। You got 9 lakh votes more than the BJP. More, yes. And less number of seats. And less number of seats mainly because of the fact that your voters were not concentrated in certain areas. But Yes. All I'm saying is very well done, great campaign, everything was fine. In my personal opinion, the only thing which worked against you perhaps was that, maybe the Hindus thought that you are too pro-Muslim, maybe. That is the only conclusion I can come to, because ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं आज तक कि हिंदुस्तान में लोगों को 450 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, लोगों को मुफ्त में घर नहीं चाहिए, लोगों को 50 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं चाहिए, लोगों को मुफ्त में ट्रैवल नहीं चाहिए, लोगों को 200 या 300 यूनिट बिजली के फ्री नहीं चाहिए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो यहाँ पर कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं है। और मैं ईवीएम को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप उस तरफ भी जरा ध्यान दें। संजय ने तो बोल दिया कि ईवीएम तो देख लो, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा सर, क्योंकि आई कांट फिगर दिस आउट, हाउ डिड दिस हैपन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में सरकार थी जिसकी वजह से उनकी कैंपेन बहुत अच्छी रही होगी, अंडर द रेडार गई, लोगों को ज्यादा उसके बारे में मालूम नहीं पड़ा। लेकिन एक और चीज भी हो सकती है, जैसे ये जो स्कीम्स के बारे में प्रदीप जी हमेशा बात करते रहे, हम भी बात करते रहे, यहाँ पे जन कल्याण स्कीम जो थी आपकी, अगर आप देखें ध्यान से, भरत सोनी साहब, आपको छोड़ करके और बाकी जितने भी हमारे लोकल स्पोक्स पर्सन हैं उनको छोड़ करके, जो आपके नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं वो तो कुछ और ही बोलते थे इन स्कीम्स के बारे में बोलने के बजाय, वो कुछ और ही बोला करते थे सर। हर चैनल के ऊपर जहां जहां जाते थे वो क्या कोई पनवती बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। तो don't you think maybe you should be a national spokesperson and all these people should be asked to go on local cable channels, etc. Very frankly speaking, that's my opinion. Sir, there is a Rajiv ji, there is a miss somewhere. हमारे में there is a miss gap somewhere ऐसा है, तो उसको कुछ कर नहीं सकते सब। मेरे हक में, मेरे इसमें जितना है उतना मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस से इतना समर्पित हूँ तो कोशिश करता हूँ। लेकिन आपकी बातें जरूर वो लोग भी सुनते हैं, क्योंकि ये सर पूरी जितना भी है वो हमारे सभी स्पोक्स पर्सन का एक ग्रुप है, उसमें ये चलता है सर, और एवरीबडी लिसन्स टू दैट। So, but our only thing is that as far as we are concerned, there should be a strong opposition in the country. And by the way, by winning Telangana, the Congress has proved that the Congress is not finished. Congress मुक्त भारत नहीं है, कांग्रेस अभी भी है साहब। और मानता हूं आपकी सीटें कम आई हैं 3 स्टेट्स में, लेकिन तेलंगाना आप जीते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी जगह पे जहां पर आप हारे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा अभी राहुल गांधी जी ने कहा,
वो उसको आप अवसर के तौर में देखेंगे. You will see that बिल्कुल, as an opportunity and you will not be disheartened. Thank you so much, Bharat Soni साहब. God bless you. थैंक यू राजीव very जी. much. और आपने, प्रदीप जी ने, नेशन नाउ ने जो हमारी बातें सब जगह रिलीज की और जो सब जगह तक पहुंचाई है, उसके कारण भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत हमें वोट मिले हैं उसके कारण. सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू. और सर सी, मुझे आप लोगों का, आपके मुंह पे तारीफ नहीं, आपके पीछे भी मैं तारीफ करता हूं कि मुझे एक बड़ा अच्छा क्या लगा कि आप एक कंफर्टेबल करते कि हमें क्या बात रखनी है. सी, वो कोई सुनता नहीं. बहुत सारे चैनल्स में क्या है, उसको रोक दिया जाता है, उसके सामने दूसरे को लड़ा जाता है. तो यहाँ कैसा है कि यू विल लिसन टू व्हाट वी वांट टू से, और वो मैसेज कहां तक जाता है. बीच में आप काटते हैं, हमें बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं, वो काबिले तारीफ है, वो होना भी चाहिए, नहीं तो क्या वन साइडेड हो जाएगा. तो सर वो प्रकार का जो चैनल है, उस चैनल को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, ज्यादा उसका रीच बढ़ना चाहिए. ये हम भी करते हैं सर, हम भी इसको बहुत बढ़ाते हैं. और ये नेशन बिल्डिंग है सर. ये आप, ये मैं कोई पेस्टरिंग नहीं कर रहा हूं या चापलूसी नहीं कर रहा हूं. ये एक नेशन बिल्डिंग का काम है सर. एंड दैट नेशन नाउ एंड आप दोनों जो करते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर. इसी प्रकार से हमें आप सपोर्ट करते रहिए. हम लोग जरूर देश के लिए अच्छा काम करेंगे सर. Thank you very much, Thank sir. you so Thank much. you so much, Thank Bharat you Soni so साहब. And we are still expecting you at the office. कि आप, मानता हूँ BKC बहुत polluted है, बहुत ज्यादा सर, प्रदूषण है सर, यहाँ पे, इसलिए लोग आते नहीं हैं. लेकिन फिर भी एक दिन आइए, कॉफी पीजिए और हमारी खांसी लेके जाइए. अपने साथ खांसी और जुकाम भी लेके जाइए, लेकिन आइए जरूर. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार. थैंक यू सर. थैंक यू. नमस्कार. प्रदीप जी, I think the Congress is a huge opportunity here. I mean, very frankly speaking. Sir, I think, as you pointed out 2-3 facts, they didn't come out in the open to say that Rajiv Gandhi ji ne, शिलान्यास ओपन कर दिया था राम मंदिर. They're very scared. अरे यार, they don't want to offend the Muslim votes. अरे भैया, दो कश्तियों के ऊपर आप नहीं चल सकते Yes. साहब. क्या है मतलब? No, and they didn't have a proper answer to Kanhaiyalal murder. I mean, उसके लिए आप justification दे देते, PFI को बढ़ाने वाली उसके लिए justification दे देते. You tried your Karnataka model शायद जी पाए, but Modi जी this time outsmart. प्रदीप जी, आप इनके जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, उनको सुनिए. ये ना ओबीसी के बारे में बात करते हैं, ना ये 450 रुपए की एलपीजी का जो गैस सिलेंडर 500 रुपए का जो मिल रहा था राजस्थान में, उसके बारे में बात कर रहे थे. ना ये 50 लाख की इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे. ना ये फ्री ट्रैवल फॉर विमेन की बात कर रहे थे. और ना ये 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे. ये सिर्फ मोदी जी को गालियां दे रहे थे. मोदी जी को आप जितनी गालियां देंगे ना, मोदी जी उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे, याद रख लीजिएगा. And they have turned it over now. जैसे बोले कि आप मोदी जी को गाली यानी ओबीसी को गाली. Now this is going to be a game changer. अरे भैया, आपने उसको चाय वाला बुलाया, उन्होंने कहा चाय पे चर्चा करते हैं, हर जगह पे जाकर के चाय की दुकान पे बैठो. मतलब ये इनको समझ में नहीं आ रहा मुझे. आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद दिस. राइट एट द मोमेंट विद अस आवर वेरी ओल्ड फ्रेंड